everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में किन किन स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी को एक फॉर्मल स्टडी बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। सो व्हेन विल टॉक अबाउट अमेरिकन स्कूल, तो फर्स्ट नेम हमारे पास होगा वो है विलियम मॉरिस डेविस का। इनका जो टाइम पीरियड है 1850 टू 1934 का है। And he studied geology and geomorphology from Harvard. Harvard से geology और geomorphology में अपनी study complete की है इन्होंने। He was one of the founders of Association of American Geographer. American Geographer की association के ये founder रह चुके हैं। He introduced professional geography in United States. US में professional geography को इन्होंने introduce कराया है। He developed the theory of cycle of erosion, which he defined as geomorphological cycle. इन्होंने cycle of erosion की जो theory है उसको डेवलप किया था, जिसको हम geomorphological cycle भी कहते हैं। He wrote on nature of regional geography. Regional geography की nature पर इन्होंने काम किया है, उसको लिखा है। He asserted that regionalization of a phenomena is product of three forces: the state base, माइग्रेशन एंड एसोसिएशन। अब इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी फिनोमेना के रीजनलाइजेशन में तीन फोर्सेस काम करते हैं। पहला है स्टेट बेस, दूसरा है माइग्रेशन एंड थर्ड है एसोसिएशन। He writes, regional geography describes the geographical elements of a given area in their totality as they exist together in their natural combination or correlation. रीजनल ज्योग्राफी के बारे में को डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने लिखा था कि जब भी हम एक गिवन एरिया के ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ये कोई एक एरिया है, इसके ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे पूरी टोटलिटी में, जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, जो भी उनका नेचुरल कॉम्बिनेशन है या जिस भी कोरिलेशन में वो है, उसको जब हम स्टडी करेंगे वो है रीजनल ज्योग्राफी। He was critique of human geographers. Human geographers की ये critique रही है। इनका कहना था कि जो human geographers हैं वो पूरी तरह से all round geographers नहीं बन पाती। He insisted regional descriptions must be homologous, कि जो regional descriptions हैं वो homologous होने चाहिए, उन सबका same character या principle होना चाहिए। He coined the term ontography. Ontography जो शब्द है उसका निर्माण डेविस ने किया था। इन्होंने ऑन्टोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था टू डिनोट ऑर्गेनिक हाफ ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के ऑर्गेनिक हाफ को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ये शब्द बनाया था। ही वॉज एडवोकेट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के ये एडवोकेट रहे हैं, उनके सपोर्टर रहे हैं। One of the pioneers in the field of geomorphology who tried to bridge the gap between geology and geography. ये एक pioneer थे geomorphology की फील्ड में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी के बीच का गैप था उसको कम करने की कोशिश की थी। विलियम डेविस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं वो मार्क जेफरसन। इनका जो टाइम पीरियड है 1863 से 1949 का रहा है, और इन्होंने जो अपनी स्टडीज हैं वो विलियम डेविस के साथ ही की थी। He was a lucid, prolific writer and a linguist. He was founder of Real Man-Oriented Geography. Man-Oriented Geography के ये जो है founder रहे हैं। His approach sought for generalization regarding man's imprint on land. इनकी जो approach थी किसी भी चीज़ की study के लिए, वो ये थी कि ये generalize करते थे man का imprint land पर, man का impact land पर। He examined the size, extent, function of cities and their areas of access to railroads under the Sushishan phrase the civilizing rails.
ये क्या एग्जामिन करते थे, क्या स्टडी करते थे? किसी भी सिटी का साइज, उसका एक्सटेंड एंड फंक्शन, और साथ में कितना एरिया एक्सेस है रेल रोड्स को। उसके लिए उन्होंने एक फ्रेज भी दिया था, द सिविलाइजिंग रेल्स। इनके कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ही कॉइंड द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, द लॉज ऑफ प्राइमेसिटी एंड द सिविलाइजिंग रेल्स। इन तीनों कंसेप्ट्स का निर्माण मार्क जेफरसन ने ही किया था। His geographical concern was with men. उनका जो geographical concern था वो men से था। Where they are, वो कहाँ हैं, what they are like, वो कैसे हैं, and why they are there, और वो वहाँ क्यों हैं। He never accepted the concept of determinism. नेक्स्ट स्कॉलर की बात की जाए तो इज़िक बोमेन। इनका पीरियड 1878 से 1950 तक का रहा है। एंड हिज मदर स्टिमुलेटेड हिज इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में उनका इंटरेस्ट उनकी मदर ने डेवलप कराया है। ही स्टडीड अंडर डेविस एंड हार्वर्ड। हार्वर्ड में उनकी स्टडीज डेविस के सुपरविजन में हुई है। He wrote his doctoral dissertation on geography of Central Indies. उनका जो डॉक्टरेट पेपर था वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद लिखा था। एंड उनका जो टाइटल था उस डिसर्टेशन का वो था द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज। उसके अलावा उन्होंने एक दी पायनियर फ्रिंज को भी पब्लिश कराया था 1931 में। He pioneered boundary studies. बाउंड्री स्टडीज की शुरुआत ज्योग्राफी में बर्मन ने की थी, और इस फील्ड में पहला जो काम किया था उन्होंने वो लिखा था ग्वाटेमाला हॉन्डुरस डिस्प्यूट के बारे में। He was initially an environmental determinist but later gave importance to role of man in transforming his natural environment. जब स्टार्टिंग की थी इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, स्टडी की थी, तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे। बट बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो इंसान ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, मैन नेचर में चेंजेस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। और इन्होंने कहा था कि मैन इज चेंजिंग हिमसेल्फ एज वेल एज वर्ल्ड एज ही गोज अलोंग। जैसे जैसे समय बीतता है इंसान खुद को भी बदलता है और अपने आसपास के जो वर्ल्ड है उसको भी बदलता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट स्कॉलर है वो है एलन चर्चिल सैम्पल। इनका टाइम पीरियड 1863 से 1932 का रहा है। एंड शी वॉज फॉरमोस्ट फीमेल जोग्राफर ऑफ हर टाइम। इससे पहले और कोई जोग्राफर था ही नहीं फीमेल, ये पहली फीमेल जोग्राफर थी अपने टाइम की। शी वॉज प्यूपिल एंड फॉलोवर ऑफ रेडजेल। रेडजेल की ये स्टूडेंट रही हैं, उनकी फॉलोवर रही हैं। She post-graduated in history and introduced Ritzel's anthropogeography to America. उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में कंप्लीट की थी, और उन्होंने जो रेडजेल की बुक था, फेमस वर्क था एंथ्रोपोजोग्राफी, उसको इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका में। बुक्स की अगर बात करें तो शी रोट इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, which was again influenced by Redzel's anthropogeography, and she wrote American history and its conditions. Interest की बात करें तो she was interested in anthropology. Her writings depict combination of history and geography. उनकी जो writings है वो एक combination होता है history और geography का। She marked the location means climate and plant at one end of the scale and civilization and political status at other. उनका कहना था कि लोकेशन क्या है, एक जब भी हम एक तरफ क्लाइमेट और प्लांट की लाइफ की बात करेंगे और दूसरी तरफ सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल स्टेटस की, वो हमारा लोकेशन है। शी वॉज अ डिटर्मिनिस्ट एंड कीन रिसर्चर थी, डिटर्मिनिस्ट थी। शी एम्फसाइज्ड ऑन मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैरिजन of typical people of all races and all stages of cultural development living under similar geographic conditions. उन्होंने कंपैरिजन की मेथोडोलॉजी पर काफ़ी फोकस करा था, एम्फसाइज किया था, जिसमें वो किस चीज़ का कंपैरिजन करते थे, अलग अलग जो लोग थे अलग अलग रेसेस के, कल्चरल डेवलपमेंट के, जो सिमिलर जोग्राफिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उनके कंपैरिजन की उन्होंने बात कही थी, फोकस किया था। And she worked on Mediterranean region for about 20 years. 20 साल तक मेडिटेरेनियन रीजन पर उन्होंने काम किया था।
चर्चिल सैंपल के बाद आते हैं एल्बर्ट पेरी ब्रिघम। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1855 से लेकर 1932 तक का रहा है। ही वॉज अ मिनिस्टर इन चर्च इन इटिका and he initially interested in geomorphology and geology. इनिशियली इनका जोमोफोलॉजी और जियोलॉजी में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने चर्च से रेजिग्नेशन दे दिया था, बट बाद में जैसे आगे स्टडीज कंटिन्यू करते गए वो उनका जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया ह्यूमन ग्रुप्स पर। ही वॉज क्रिटिक ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के क्रिटिक थे वो। He was critical of people making generalization about climatic influences on human. At that time, people were generally talking about how climate influences humans, but he was critical of that. He did not believe in that. Apart from that, he wrote Geographical Influences on American History. This was a book written by him, and he helped run the Association of American Geographers. अमेरिकन जोग्राफर्स का जो एसोसिएशन था उसको चलाने में इन्होंने काफ़ी मदद की थी। Now, the next scholar that we have is Carl O. Sor. इनका जो टाइम पीरियड है 1889 से 1975 तक का रहा है। He was leading American geography in 20th century. 20th century के ये leading geographer रहे हैं। He rejected environmental determinism and was activist of possibilist movement. Determinism को reject करते थे ये, लेकिन possibilism का favor करते थे। He contributed mainly in the field of agriculture, diffusion of plants and animals, and the impact of conquest upon indigenous American societies. उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इन तीन फील्ड्स में रहा है। He focused on processes leading to landscape change up to the present time तक जो processes landscape को change कर रहे हैं उन पर इन्होंने फोकस किया है। He insisted the use of historical method in geography. ये इंसिस्ट करते थे कि ज्योग्राफी की स्टडी के लिए हमें हिस्टोरिकल मेथड या हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए। ओपिनियन की बात करें तो ही ओपिन द जियोग्राफी डिसोसिएट्स itself from geology at the point of introduction of man into aerial scene. इन्होंने कहा था कि जिस समय एरियल सीन में हम एरिया की स्टडी में हम स्पेस की स्टडी में हम मैन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसी पॉइंट पर जो है ज्योग्राफी अपने आप को जियोलॉजी से अलग कर लेती है। He introduced the term landscape in American geography. American geography में जो term है वो इन्होंने ही introduce कराया था and put forward landscape as alternative to environmental determinism. और जब इन्होंने ये landscape word introduce कराया था ये कराया था इन्होंने as an alternative to environmental determinism. He envisaged the study of landscape in geography as a scientific endeavor. इन्होंने लैंडस्केप स्टडी है जो ज्योग्राफी में उसको एक साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक स्टडी के रूप में प्रेजेंट किया था। He emphasized the cultural landscape and the study of its creation involved general, regional and historical geography. इन्होंने क्या कहा था कि जब भी हम कल्चरल लैंडस्केप को और उसकी क्रिएशन को स्टडी करेंगे तो वो क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेगा। पहला जनरल ज्योग्राफी, दूसरा रीजनल ज्योग्राफी, तीसरा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी लैंडस्केप कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी में। He said geography is distinctly anthropocentric है geography and developed geography as study of landscape morphology. Geography को इन्होंने as an study of landscape morphology डेवलप किया था और उसी पर उन्होंने अपना एक वर्क भी पब्लिश कराया था The Morphology of Landscape. Also he was protagonist of chorological theme. chorological theme के ये protagonist रहे हैं। नेक्स्ट अगर स्कॉलर की बात करी जाए तो एल्सवर्थ हिंटिंगटन 1876 से 1947 का इनका टाइम पीरियड रहा है। ये एक डेविस के स्टूडेंट थे। इन्होंने 28 बुक्स को ऑथर एंड को ऑथर किया है। 28 बुक्स को लिखने में मदद की है इन्होंने या उनको लिखा है और वो एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे एंड ही शोड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट है उसको इन्होंने दिखाया है। इनके काम की बात की जाए तो ही रोट पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
जो इनका मेन वर्क रहा है। According to him, changes in the sun are major causes of changes in terrestrial climate, and climate profoundly influences man, his culture, other forms of life, and geological processes. इन्होंने कहा है कि टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट में जो ज़्यादातर चेंजेस होते हैं उसका मेन कारण सन है और सन के अंदर हो रहे चेंजेस हैं और वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है इंसानों को, उनके कल्चर को, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को और जियोलॉजिकल processes को। He followed a quantitative approach in the measurement of civilization. Civilization की measurement के लिए इन्होंने quantitative approach का इस्तेमाल किया है। And he gave importance to heredity, stage of culture and diet. उनके studies में दिखाया गया कि उन्होंने heredity, stage of culture and diet इन factors पर को जो है काफ़ी importance दी है। अब क्रिटिसिज्म की बात करें तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ही गिव टू मच वेट टू फिजिकल फैक्टर्स पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बट टू लिटिल टू ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। बट जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज है उसके ऊपर बहुत कम ध्यान इन्होंने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कॉलर की तो वो है रोलिंड डी सेल्सबरी। इनका जो टाइम पीरियड है 1858 से 1922 का रहा है एंड ही वाज मेजर फोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन यूएस ज्योग्राफी में काफ़ी डेवलपमेंट किया है इन्होंने। ही एस्टैब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया और उसको ऑर्गेनाइज किया। ही वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये and rejected the idea of simple cause and effect between physical earth and human responses. Human responses और physical earth के बीच में जो simple cause and effect है उसको इन्होंने reject किया था। He published his ideas in physiography. This was his work. Physiography जिसमें इन्होंने अपने ideas को publish कराया था and physiography classic book है जो कि evolution of landforms के ऊपर based है। Thank you so much. This was all about the American School of Geography, and I hope आपको समझ आया हो और इसने आपकी हेल्प की हो। Thank you. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.